अभिजित वाघमोडे आहेत का? हॅलो, अभिजित. अभिजित वाघमोडे आहेत का? हॅलो, please mention your roll numbers in the chat box. Do it fast time. Cut. Hello. Let us start. Hello, hello. Hello. Yes, sir. Here, last time what we have seen, swapping logic we have seen. Yes, by using two variables, how we can swap two values. Swapping is nothing but exchanging the values of two variables between two variables. If suppose we are exchanging the values, for example, x is equal to 2, y is equal to 3. So after swapping, what will happen? Value of y will be given to x and value of x will be given to y. Yes. Yes, sir. So by using three variables that we have seen, because already we have seen, if suppose you wanted to swap values between two variables, so direct swapping is not possible, because what will happen? At a time, variable can store only one value. Yes. Last time we have seen that was not possible for us to swap the two values. बरोबर का? So third variable we used, and with the help of third variable we tried to swap two values. And बघितला होता का प्रोग्राम? Hello. Let us understand second method. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Sir, first method we have seen where three variables, by using three variables we can swap in first method. Now in second method, by using only two variables also we can swap. Let us try to understand. Now this is the logic, and with the help of this logic we swap two values. We are calling this method as by using three variables. Now if you can consider, I have only two variables, x is equal to 2,
okay, and y is equal to 3. And if I wanted to swap these two values by without using third variable, that is also possible. So how I am writing, you can see here, and x is equal to, initially will perform addition of x and y. तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिलेगा? हेलो, ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है? x को x चला और y में, दैट इज नॉट पॉसिबल. यस. So x, initially x is equal to 2, y is equal to 3, x is equal to x plus 3 means value of x will get 5. Yes. 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 Yes, sir. After this, we will write x is equal to x minus y. Now you tell me what will be the value of x? 3. So now value of x is 5. Okay, 5 minus value of y is 3. तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, sorry. Instead of x, we'll write y. So initial value of x is 5 minus value of y is 3. So 5 minus 3, 2. So value of y will become 2. Yes. Hello. Yes, sir. Similarly, here we will write x is equal to x minus y. Now you can determine value of x is still 5. 5 minus value of y, recent value of y is 2. 5 minus 2, therefore we will get x is equal to 3. Therefore we will get x is equal to 3. Yes. Yes, sir. So this is the logic. This is the logic. By using two variables only, we can swap, and that is also possible. Only what expressions we are changing, certain operations we are changing. So x is equal to x plus y is equal to x minus y, and x is equal to x minus y. With these three statements, also we can swap two values. Let us check it. Hello. Yes, sir. Yes, sir. F3 1.c, F3 2.c, F5 swapping logic with two variables. Okay. Hello. So as usual, we can include our header files at the top. Hash include stdio.h, hash include conio.h. Without main function, program will not be executed. So let us not miss to write main function. CLR SCR to clear the previous output screen. Get safe to hold the output screen. So before CLR SCR, we can declare our variables. Now here we will not be using three variables. By using two variables only, we are trying to swap our values. So A and B. So two variables are sufficient. Initially, value of A is equal to 2. Value of B is equal to say 3. So before swapping, let us display values of A and B on the output screen. So I can write message before swapping values. Before swapping, इतना ही लिखो. Before swapping, printf A का value and B का value we are displaying on the output screen. A is equal to %d comma A. Similarly, control insert, shift insert. Let us display value of B. F2 save किया, run किया. So value of A and before swapping, value of A is 2, value of B is 3. Yes. Hello. Yes, sir. Original values. Okay, original values of A and B. Now let us write logic. A is equal to A plus B. Okay. B is equal to A minus B, and A is equal to A minus B. Let us check it. So same statements I will be copying. Control insert copy, shift insert paste. After swapping. Let us check it.
So value of A is equal to 2 before swapping, value of B is equal to 3 before swapping. After swapping, values of A and B and are A is equal to 3 and B is equal to 2. Yes? Yes, sir. So have you understood by using two variables also we can swap values? समझ लगा? Hello. Yes. Yes. So let us go to next point. This is the another method. By using two variables also we can swap. You can check it. I hope you are writing it in your notebooks. Yes. Don't know. See here. Let us go to next point. Very important operator, increment and decrement operator. झालं का हे? नाही ना झालं? Hello. No, sir. So ये spelling गलती है. Increment का ये spelling है, decrement का ये spelling है. So two types of operators now we will see and we will learn increment and decrement operator. So increment operator is the operator, okay, which is helping us to increase the value of variable by one each time. And each time, if suppose you wanted to increase the value of variable by one, so increment operator helps. इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज क्या है कि वेरिएबल में सपोज यहाँ पे a is equal to 2 लिखा है, okay, and if I will use increment operator we are denoting by plus plus symbol. 2 times plus symbol means it is increment operator, 2 times minus symbol means decrement operator. So increment operator will help us to increase the value of variable by 1. Hello. Plus plus symbol will help us to increase value of variable by 1. If you will be writing a is equal to 2 and after this if you will be using plus plus means what? Increment operator, so value of variable will be increased by 1, it will become 3. Yes. Yes, sir. Similarly decrement operator, so 2 times minus symbol will be using, so 2 times minus symbol means decrement operator, and decrement operator is helping us to decrease वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1. एक से वैल्यू डिक्रीज करने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा. फॉर एग्जांपल a का वैल्यू 2 है एंड व्हेन विल यूज एन माइनस माइनस, सो वैल्यू विद दिस a वेरिएबल, ओके, विद दिस a वेरिएबल, so value of a gets decreased by 1, we will get it 1. Now one more thing, one more point, increment and decrement operators are a unary operator. Unary operator means what? It operates on single वेरिएबल और वन ऑपरेंड, एक ही वेरिएबल के ऊपर काम करता है ये ऑपरेटर, ठीक है. इंक्रीमेंट एज वेल एज डिक्रीमेंट. हेलो. Yes, sir. सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स है, उसमें हर एक के दो दो टाइप है, ठीक है. इंक्रीमेंट ऑपरेटर विल हैव टू टाइप्स, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. Similarly, decrement operator will also have two types, pre-decrement and post-decrement. So increment operator will have two types, decrement operator will have two types. Okay. So pre-increment and post-increment. Let us try to understand pre-increment. Pre-increment means what? Variable के पहले है ना plus plus symbol आएगा. So we are calling it as pre-increment operator. Post-increment means what? Variable के बाद plus plus when we'll be using, where we'll be calling it as post-increment operator. तो ये प्लस प्लस सिंबल जो है वो वेरिएबल से पहले आया तो उसको प्री बोलेंगे, वेरिएबल के बाद आया तो उसको पोस्ट बोलेंगे. हेलो. Yes, sir. सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर इफ विल बी यूजिंग है ना बिफोर वेरिएबल मींस ऐसा, वेरिएबल यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर. और वेरिएबल के बाद आया डिक्रीमेंट ऑपरेटर आफ्टर वेरिएबल इफ यू विल बी मेंशनिंग, मतलब ऐसा माइनस माइनस. हेलो. यस. Yes. Yes, sir. एक मिनट. माइनस माइनस, so variable minus minus, so this is post decrement operator, this is pre decrement operator. समझ लगा? 4 types. Hello. Yes, sir. With the help of example now we will understand.
इसको सेव करेंगे ना, अल्ट एफ सेव एज 3.c। तो टाइपिंग का थोड़ा सा एफर्ट्स कम होगा हमारा, यहाँ पे ही चेंजेस करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्लस प्लस से डिनोट होता है, ठीक है, उसमें दो टाइप है, प्री इंक्रीमेंट एंड हेलो पोस्ट इंक्रीमेंट। For example, if suppose a variable we are using, so pre-increment can be written as plus plus a. Yes? Hello. यस सर। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, a के बाद प्लस प्लस आएगा। मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज, ये वेरिएबल का जो वैल्यू है वो एक से बढ़ाएगा, ठीक है, आइदर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इफ यू विल बी यूजिंग प्री इंक्रीमेंट, if you will be using post increment, meaning wise there is no any such difference. It helps to increase value of variable by 1. Let us try to understand. Now here I will be declaring integer type of variable. A is integer type of variable. Initially value of a let us assign as 2, and after this I will use a plus plus. So ये क्या हुआ? Hello, hello. Pre or post? Hello. Post in. हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, a प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके पहले है, बिफोर दिस ऑपरेटर इफ यू विल चेक वैल्यू ऑफ a यहाँ पे, और इसको कमेंट पास करता हूँ, देखो है ना, वैल्यू ऑफ ए इनिशियली कितना है, रन करेंगे 2 है, बराबर। हेलो, यस सर। हाँ, इसके बाद है, इसके बाद what we are doing, we are increasing value of a n by a post increment operator, and इसके बाद फिर से हम यही स्टेटमेंट कंट्रोल इंसर्ट कॉपी शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट। तो a का वैल्यू वी आर ट्राइंग टू चेक इट, ओके, आफ्टर दिस इंक्रीमेंटेशन by 1, and a plus plus is, मीनिंग ऑफ a प्लस प्लस क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस 1। हेलो, ओके। यस सर। तो a का वैल्यू 2 था, यहाँ पे 2 दिखाया उसने, यहाँ पे 2 दिखाया। a प्लस प्लस मीन्स व्हाट, वैल्यू ऑफ a गेट्स इंक्रीज्ड बाय 1, इट विल बिकम 3, and if we'll check it and what is the value of a, so it will display 3. Let us check it. I am executing this program, so initial value of a is 2, after using a plus plus means what, post increment operator. Yes, we are getting value of a as 3. Hello. यस सर। So this is a post increment operator. Now I'm making some changes. Instead of post increment, I will use pre increment plus plus a. Hello. यस सर। So इसका भी मीनिंग a is equal to a plus 1 ही रहता है. It means value of a is 2, so plus plus a. Because of this pre increment operator, what will happen, value of again a gets increased by 1. तो यहाँ पे भी हमको सेम ही रिजल्ट मिलेगा. हेलो, yes. यस सर। It means if you are using pre-increment or post-increment, there is no any kind of such difference, okay, such difference where actually will be getting difference. But when entire result, if you will try to store in another variable, then value of another variable gets changed. Let us try to understand this. So have you understood, pre use करो या post use करो, variable के ऊपर उसका value 1 से increase होगा. हेलो, यस, यस सर। हाँ, अभी डिफरेंस कब आएगा, ठीक है, डिफरेंस कब आएगा, दैट वी विल अंडरस्टैंड. सो वन मोर वेरिएबल आई विल बी यूजिंग, से अनदर वेरिएबल से b, और b का वैल्यू है एंटायर रिजल्ट प्लस प्लस a जो है, जिसका मीनिंग a इज इक्वल टू a प्लस 1 है. सो एंटायर रिजल्ट इफ यू आर ट्राइंग टू स्टोर इन अनदर वेरिएबल, दैट अनदर वेरिएबल इज b. So I have written b is equal to plus plus a. Hello. यस सर। Now here value of b will change. a का वैल्यू जो है वो a का वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज होगा इन बोथ केसेस, प्री और पोस्ट. बट व्हेन एंटायर रिजल्ट इफ यू विल बी ट्राइंग टू स्टोर इन अनदर वेरिएबल से b, यहाँ पे b का वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा. फॉर एग्जांपल लेट अस चेक है ना, वैल्यू ऑफ b स्लैश n b इज इक्वल टू %d कॉमा b. अभी चेक करो है, इनिशियल वैल्यू ऑफ a इज 2, यहाँ पे a का वैल्यू 2 दिखाएगा,
After this, we have written b is equal to plus plus a, because of which what will happen here, pre-increment is used, and as pre-increment is used, it means you are increasing value of a and by 1, and this task will be completed first, and its result gets stored in b. Therefore, value of b we are getting, okay, increased value of a. It means in this case, value of a and value of b we will get as 3. Hello, यहाँ पे a का वैल्यू भी 3 मिलेगा और b का वैल्यू भी 3 मिलेगा. b का वैल्यू 3 क्यों मिलेगा? बिकॉज वी यूज्ड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट यूज किया है, इसलिए पहले क्या होगा, a का वैल्यू जो 2 है उसका वैल्यू 1 से इंक्रीज होगा एज इट इज प्री इंक्रीमेंट. इट मींस यू आर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ a by 1, and this task will be completed first, and its result and gets stored in this b variable. Therefore b का वैल्यू हमको 3 मिल रहा है और a का भी हमको 3 मिल रहा है. हेलो, Yes, sir. so let us check it. So a का वैल्यू जो इनिशियल था वो 2 था, और हमने लिखा बाद में b is equal to plus plus a. So pre-increment operator we used, and its result we stored in b variable. So a का वैल्यू हमको 3 मिला और b का भी 3 मिला. b का क्यों 3 मिला? तो प्री इंक्रीमेंट यूज हुआ है. हेलो, ओके Sir, yes, sir. हाँ, अभी डिफरेंस मिलेगा. इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्री इंक्रीमेंट आई विल यूज एन पोस्ट इंक्रीमेंट, and when you will be using post increment, in this case what will happen, value of a gets increased by 1. a का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा 1 से, in both cases, pre or post. But when entire result, if you are trying to store in b variable, at that time there is change in b variable. b का वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ a मिलेगा. यहाँ पे कैसा होगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट, later on we are increasing value of a by 1 in next case. it means यहाँ पे इनिशियली वैल्यू ऑफ a जो है 2 था, तो 2 जो है वो b में स्टोर होगा. बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ऑफ b विल बी गेटिंग हियर 2, बट वैल्यू ऑफ a वी आर गेटिंग 3. हेलो, a का वैल्यू 3 मिलेगा, लेकिन b का वैल्यू जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होने की वजह से उसका वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू a था वो वैल्यू b को मिलेगा. हेलो हेलो, यस, हेलो हेलो, Sir, अजून एकदा समजलं का? अजून एकदा सर सांगा. Here value of a is 2. So before this statement, value of a we are displaying, so we will get result as 2. इथं काय अडचण? No, sir. After this, we have used b is equal to a plus plus. It means a plus plus means what? We are using post increment. Am I right? Yes, sir. Post increment means later on you wanted to increase value of a by 1, and when you will store an entire result a plus plus result, when you will store in b, at that time initial value of a gets stored in b because post increment है. Hello, Yes, sir. तो a का इनिशियल वैल्यू जो था वो 2 था, तो b में 2 स्टोर होगा, और a जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से a का वैल्यू 3 मिलेगा. हेलो, b का वैल्यू 2 ही मिलेगा और a का वैल्यू 3 मिलेगा. हेलो, यस, Yes, sir. a का वैल्यू 3 मिलेगा और b का वैल्यू 2 मिलेगा बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर. अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, यहाँ पे b का वैल्यू भी इंक्रीज होगा बिकॉज यू आर यूजिंग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. यहाँ पे a और b है ना, दोनों का वैल्यू आपको 3 मिलेगा. यस, हेलो, Yes, sir. समझ में आया क्या? प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. हेलो, meaning wise there is no any kind of such difference between pre and post increment. But when entire result means what, along with variable, if you are considering pre or post increment, and entire result if you are trying to store in another variable like b, यहाँ पे b यूज किया है, कौन सा भी वेरिएबल ले लो आप,
तो बी का वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा प्री और पोस्ट का मीनिंग के अकॉर्डिंग। हेलो, ओके। Yes, sir. Similarly, sorry, let us save as 4.c. Instead of increment, let us try to understand decrement operator. Decrement operator, how we are denoting? 2 times minus symbol. तो यहाँ पे डिक्रीमेंट आएगा, तो ऊपर लिखा है मैंने, जस्ट आई एम चेंजिंग दी साइन। यस, इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो, प्री डिक्रीमेंट। यस, Yes, sir. इसको हम पोस्ट डिक्रीमेंट बोलेंगे। माइनस माइनस जो है वो वेरिएबल से पहले आया तो उसको प्री डिक्रीमेंट बोलेंगे। वेरिएबल के बाद माइनस माइनस आया उसको पोस्ट डिक्रीमेंट बोलेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज हेल्पिंग अस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। तो पहले हम डिक्रीमेंट का समझ के लेंगे, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, F2, yes, a is equal to 2 है initially, and immediately we are printing value of a on the output screen, so we will get it and a is equal to 2. Yes, hello, hello. Yes, sir. After this, now we will use an, first of all we will use an pre-decrement operator, minus minus a. Now meaning of this statement is what? A is equal to a minus 1. Yes. Yes, sir. तो ये जो है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसकी वजह से क्या होगा? ए का वैल्यू जो है वो एक से डिक्रीज होगा। जो भी कुछ वैल्यू था ए का वो एक से डिक्रीज होगा। सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट वी आर डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ ए ऑन द आउटपुट स्क्रीन। कितना मिलेगा? हेलो, ए इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए। कितना मिलेगा ए का वैल्यू? हेलो, हेलो, 1. 1 मिलेगा, करेक्ट। मिला? हेलो, Yes, sir. यहाँ पे जो है प्री डिक्रीमेंट यूज हुआ है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्री डिक्रीमेंट लेट अस यूज पोस्ट डिक्रीमेंट, तो भी हमको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। यस, बिकॉज मीनिंग इज सेम, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ओके, Yes, sir. डिफरेंस कब आएगा? नाउ हु विल टेल मी, डिफरेंस कब आएगा? व्हेन अनदर वेरिएबल बी ले रहे हैं हम और एंटायर रिजल्ट जो है वो बी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अभी बताओ ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या मिलेगा? हेलो, फास्ट, सेम लॉजिक यू विल हैव टू अप्लाई। बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा बी का वैल्यू? हेलो, ए और बी का वैल्यू कितना मिलेगा? हेलो, यहाँ पे माइनस माइनस यूज करेंगे, सॉरी, बताओ अभी। हेलो, 1. 1. दोनों का वैल्यू, ए का वैल्यू भी 1 एंड बी का वैल्यू भी 1। व्हाई 1? बिकॉज प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर वी हैव यूज्ड। यस, Yes, sir. ए का भी 1, बी का भी 1। नाउ इंस्टेड ऑफ माइनस माइनस ए आई विल यूज ए माइनस माइनस। अभी बताओ। हेलो, ए का वैल्यू 1. वेरी गुड, बी का 2. very good, because here post decrement operator we have used, and as post decrement operator we have used along with another variable b, तो यहाँ पे a का जो initial value है जो 2 था, it gets stored in b, therefore value of b we are getting 2 and value of a will get as 1. yes, hello, Yes, sir. समझ में आया क्या? प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। हेलो, Yes, sir. चलो जाएंगे आगे, ज्यादा खींचेंगे नहीं इसको लंबा, ये आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड data types. Okay, so definition of data type, if you will read, and a data type is defined as a type of data, which type of data we are using in the program, okay,
and that we are mentioning with data types. तो ये पहले ही सीखा है हमने, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर लर्निंग डेटा टाइप्स मीन्स व्हाट, कौन सा टाइप का डेटा है ना, विच टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग इन योर प्रोग्राम, दैट यू आर मेंशनिंग. सो ऑलरेडी वी हैव सीन इंट एंड फ्लोट. यस, कैर नहीं सीखा है, कैर सीखेंगे हम अभी. int and float already we have seen. So before variables, if we are using this data type, so meaning of this statement is what? Machine will understand A, B, C, three types of variables you are using in the program, and int is mentioned means what? A, B, C, these are integer type of variables. Hello. Yes. Yes, sir. A, B, C are integer type of variables. ऐसा मशीन को समझ में आएगा. Machine will understand in this way. अगर ऐसा लिखा float a, b, c semicolon, so with this statement machine will understand A, B, C and three variables you have used which are having floating type of variable. It means fractional values we can store in this A, B, C. Yes. Yes, sir. Once again, I am repeating, data type is defined as which type of data you are going to use in your program that you are mentioning before variables, and it is called as data type. कौन से टाइप का डेटा है जो आप प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, ठीक है, that you are mentioning, and if you are mentioning, it is considered as data type. Hello. तो नॉर्मली जनरली थ्री टाइप्स ऑफ डेटा है वहां पे. इंट बोले तो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज यू आर डीलिंग विद, फ्लोट मींस फ्रैक्शनल वैल्यूज यू आर डीलिंग विद, एंड थर्ड जो है कैर, कैर मींस कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा आल्सो वी कैन यूज. हेलो. तो वो कैसे यूज करने का है वो देखेंगे हम अभी. हेलो, समझ में आया क्या डेटा टाइप क्या है? हेलो. Yes, sir. कैन यू गिव एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप? इंटीजर डेटा, हेलो, इंटीजर डेटा मेरे को यूज करने का है. कैन यू गिव एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल वेयर वी कैन यूज ओनली इंटीजर डेटा? हेलो, बताओ. Addition of two numbers. ते प्रॅक्टिकल म्हणतोय मी आहे. प्रोग्राम वी हॅव सीन ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स, इंटीजर नंबर्स. प्रॅक्टिकल एग्जांपल्स आई एम आस्किंग वेयर यू विल यूज ओनली इंटीजर. इंटीजर खाली कहाँ पे यूज होगा? ओनली इंटीजर मेरे को यूज करने का है डेटा. सो व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू विल गिव सो दैट वी विल अंडरस्टैंड वी विल हैव टू यूज ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डेटा? हेलो. Simple calculation. सिंपल कॅल्क्युलेशन हे एक्झाम्पल नाही झालं आहे. प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल आई एम आस्किंग. सियर पेन है, पेन है. सो नंबर ऑफ, ये जो क्वांटिटी रहेगा पेन का है, सपोज आई हैव टू नंबर ऑफ पेन्स, आई हैव वन नंबर ऑफ पेन, आई हैव 10 नंबर ऑफ पेन्स. ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी डिनोट करने के लिए खाली इंटीजर ही यूज होगा. यू थिंक? हेलो. ऐसा नहीं Yes, हो, sir. ऐसा नहीं होगा 1.5 पेन. हेलो. Yes, sir. So sometimes if certain objects if you are considering like pen, तो पेन ऑब्जेक्ट कंसिडर किया तो वो 1.5 पेन नहीं रहेगा. ऑलवेज वो इंटीजर में रहेगा. 2 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 10 पेन. हेलो. Yes, sir. So this is the example, practical example of integer. If suppose you are considering quantities like such objects like pen, तो यहाँ पे क्या होगा? वो इंटीजर में आएगा. सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. हेलो. Yes, sir. एक तो अभी कितना है? 56 है. एक तो 56 रहेगा, नहीं तो 55 रहेगा, नहीं तो 50 रहेगा, नहीं तो 40 रहेगा. 56.5 ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं रहेगा. हेलो पार्टिसिपेंट्स, those which are present in the, देखो ये such kind of applications if suppose you wanted to develop, you will have to think and what kind of data you are using according to your application. Hello. Yes, समझ sir. में आया क्या इंटीजर का? Now can you give some examples for integers? फटाफट. जहाँ पे इंटीजर ही यूज हो. Number of trees.
नंबर ऑफ ट्रीज, यस नंबर ऑफ ट्रीज। अभी नंबर ऑफ ट्रीज का भी कैसा रहेगा, अगर किसी ने हाफ काटा है तो वहां पे दिक्कत आएगा, ठीक है। नाउअडेज है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स trees are getting है ना cut it down, and so most of the times we are cutting it. Another example, hello. number of person, हाँ, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नंबर नंबर बोले तो क्वांटिटी है, हो गया ये खत्म। ऐसा कुछ और कुछ है क्या है? हम्म, हेलो। यार नंबर ऑफ नंबर क्वांटिटी के टाइम पे ही मोस्टली है ना इंटीजर आता है, ऐसा कुछ एग्जांपल है क्या? फ्रॉम डिवीजन बी है ना, एक्चुअली आई गॉट वन आंसर है ना, टेम्परेचर है ना, इफ यू आर कंसीडरिंग टेम्परेचर सो ऑलवेज इट विल बी, if you are considering in degree Celsius, so we'll be getting it in integer. Is it so? Is it like that? Hello. No, sir. 100.5 डिग्री सेल्सियस रहता है क्या, पता नहीं मेरे को। हेलो, या 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, it means if temperature you are measuring in degree Celsius, so always we will be getting okay temperature in integer. Such kind of answer I got from division B. Is it the case? I don't know. Hello. you Hello. बघा याचं उत्तर कधी देता आलं तर द्या ना, पुढच्या वगैरे कुठल्या लेक्चरला. No, sir. इंटीजर, हॅलो. No, sir. No, sir. काय नो? टेम्परेचर साठी आपण फ्लोट वापरू शकतो. वापरू शकतो? होता है सर शायद पॉइंट में। हाँ, पॉइंट होता है, पॉइंट में होता है, तो मतलब डिवीजन बी से जो आंसर मिला है दैट आई कैन निग्लेक्ट इट बिकॉज टेम्परेचर इफ वी आर मेजरिंग इन डिग्री सेल्सियस समटाइम्स वी आर गेटिंग, ठीक है, 80.5 डिग्री सेल्सियस ऐसा मिलता है, वहां पे लाइंस रहता है छोटा छोटा, यस, जैसे हमको 1.5 मिलीमीटर मिलता है। हेलो, यस, Yes, sir. हाँ वैसा मिलेगा। अभी और एक एग्जांपल मैं दूंगा, देखो हमारा जो स्केल है ना, स्केल, अगर आपके पास स्केल रहेगा है ना, रूल क्या बोलते हैं हम उसको, है ना स्केल बोलते हैं, ठीक है, उसमें मिलीमीटर्स का लाइंस रहता है, यस। हेलो, Yes, sir. now that example you can consider if suppose you have a scale with millimeters, and if you are measuring your length in millimeters, so always you will get okay length in millimeters only, because उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो मिलीमीटर का ही रहता है। हेलो, यस, Yes, sir. जहाँ पे हमको इंटीजर वैल्यू मिलेगा। और अगर आप सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हो, सेम स्केल इफ आई विल बी यूजिंग, एंड सेंटीमीटर इफ यू विल बी कंसीडरिंग, इन दैट केस if you will be measuring centimeters, okay, I'm not telling millimeters, if you are measuring centimeter, then in that case 1.5 सेंटीमीटर आ सकता है, yes। 1.5 सेंटीमीटर मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर के बाद 5 लाइन रहेगा मिलीमीटर्स का, yes। थिंक करो, है ना। so have you understood integer? इंटीजर मतलब डेसिमल प्लेसेस नहीं आएगा उसमें, ऐसा टाइप का डेटा अगर इफ यू आर कंसीडरिंग इन योर प्रोग्राम यू विल हैव टू गो विथ इंटीजर। अभी फ्लोट का एग्जांपल्स बताओ, हेलो फटाफट। हॅलो सर. हाँ, सर राऊंड अबाउट व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर म्हणजे काय, म्हणजे काय? राऊंड अबाउट. राउंड अबाउट का राउंड ऑफ? राऊंड ऑफ. हाँ, मतलब 4.5 रहेगा तो 5 आएगा, बराबर? नहीं 4.5 रहेगा तो 4 आएगा। हाँ सर, यस सर, हाँ. That is possible, and that we will see. But here right now our question was what? So when you will use an integer type of data in your program, that was the basic question. तो conversion कैसा करने का है, that we will see it, and
in one of the programs, but here you try to understand integer कब लेने का है, integer data मतलब क्या रहता है. Have you understood? Yes, sir. Most of the times quantity जो है वो integer में रहता है. For example, number of pages for any book. कोई बुक आप कंसिडर कर रहे हो तो उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस रहते वो जो इंटीजर में रहेगा, नंबर ऑफ पेजेस. हेलो, Yes, sir. 200.5 ऐसा नहीं रहेगा आधा पान फटा हुआ, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, इंटीजर नंबर ऑफ पेजेस. सो सम ऑफ द objects, okay, like numbers or quantities if you are considering. But another example, if suppose you are considering, okay, you will go to market and if you wanted to purchase sugar and शक्कर खरीदने का है, वहां पे जाके आपको 1.5 किलोग्राम का शक्कर मिलता है. यस, 1.5 किलो. हेलो, Yes, sir. 1.5 किलो क्या बोलते हैं, देखो है ना, 1.5 किलो बोले तो 1.5 है, 1.5 किलोग्राम का शक्कर मिलता है. तो हर एक क्वांटिटी, हर एक ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी जो है वो एवरी टाइम इंटीजर ही रहेगा ऐसा भी नहीं है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन examples, practical examples. Yes, hello. सर गाडीचे सीसीचं एक्झाम्पल होऊ शकतं. वाटर अगर कंसीडर किया तो 1.5 लीटर का वाटर मिल सकता है, 1.5 लीटर, 2 लीटर. यस, कैन रहता है. हेलो, हॅलो सर. हाँ सर गाडीचे सीसीचं इंजन होऊ शकतं काय इंटिजरचं एक्झाम्पल? हाँ, अभी गाड़ी का जो उसके ऊपर डिपेंड है ना आपका, जो डिजिटली जो दिखाया जा रहा है आपको है डैशबोर्ड के ऊपर, जो डिजिटल नंबर्स आ रहा है, अगर वो इंटीजर्स है तो इंटीजर में आएगा है. सम ऑफ दी व्हीकल्स है ना, ऐसा भी रह सकता है कि 4.5 ऐसा कुछ मिल सकता है आपको. हेलो, इट डिपेंड्स. अभी कंपनी टू कंपनी इट में वैरी. हेलो, ओके सर. 50.5 किलोमीटर पर आवर से हम जा सकते हैं. यस, 50. नाही सर ते म्हणत नाही मी. हाँ सीसी सर 110 सीसी 180 सीसी अशा असते बघा. हाँ, capacity of engine. Yes, हाँ सर. that can be considered as okay. Most of the times it is that you will find in integers. अभी 1000 सीसी का भी हमने एग्जांपल कंसिडर किया तो एक्चुअली 1000 सीसी नहीं रहता है, 999 ऐसा कुछ तो सीसी रहता है. यस, एग्जैक्टली 1000 सीसी का नहीं मिलेगा आपको. 100 सीसी भी बोला जाता है तो वहां पे 97 पॉइंट समथिंग सीसी मिलता है. अगर आपका 100 सीसी का बाइक रहेगा कोई भी तो उसमें भी कैसा है, देखो 100 कट टू कट नहीं रहेगा है, कट टू कट मतलब एग्जैक्ट 100 नहीं रहता है, वो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन वो इंटीजर में कंसिडर किया जाता है. उसका बेस्ट एग्जांपल है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपका जो इंजन रहता है उसका कैपेसिटी जो आप देखोगे वो क्यूबिक सेंटीमीटर में रहता है. तो उसका क्यूबिक सेंटीमीटर में आप कैपेसिटी देखोगे तो वो इंटीजर में रहता है ऑलवेज. यस, वेरी गुड. हेलो, हाँ सर. तो फ्लोट का कुछ एग्जाम्पल रहेगा तो पाई का वैल्यू, बहुत सारा एग्जाम्पल जो है वो फ्रैक्शंस में रहता है, पाई का वैल्यू रहेगा. यस, चलो, एडियाबेटिक इंडेक्स बोल के एक बीएमई में कॉन्सेप्ट था 1.4 ऐसा कुछ तो वैल्यू था उसका. यस, बीएमई में सीखा है क्या, देखो है. हेलो, याद नहीं है. जी का वैल्यू है ना, जी का वैल्यू, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है वैल्यू, 9.81. यस, these are the practical examples where we are considering fractional values. Yes, hello, फ्लोट का बहुत सारा एग्जांपल्स मिल जाएगा आपको. यस, हॅलो सर. हाँ सर एरिया ऑफ सर्कल साठी आपण इंट वापरलं तर कसं चालेल हो. एरिया ऑफ सर्कल साठी इफ यू यूज इंट है ना, यू विल गेट है ना रॉन्ग आंसर, बिकॉज जो फॉर्मूला है ना, AC इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर. यहाँ पे पाई जो है, पाई वो फ्रैक्शन में रहता है 3.14. तो आपका जो आंसर मिलने वाला है AC वो ऑलवेज आपको फ्लोट में ही मिलेगा. एग्जैक्ट आंसर इफ यू वांट, if you don't want exact answer, you wanted to round it off,
then you will get it. Okay, you can consider integer, but there will be little bit थोड़ा सा अलग आंसर मिलेगा जो गलत रहेगा. हेलो, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा. हेलो, ओके सर. you can use integer but you will not get exact answer. यस सर. Suppose area of circle है ना, you are getting 3.5 3.14 and आपने इंटीजर लिया है तो वो खाली 3 दिखाएगा, वो 0.14 ये निग्लेक्ट करेगा. हेलो, you can try it out. You can write small program where you can consider है ना एरिया ऑफ सर्कल के लिए इंटीजर लेने का और स्मॉल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखने का. 3.14 अगर एग्जैक्ट आंसर रहेगा एंड इफ you have used okay integer type of variable for AC, in that case you will get 3 answer, you will not get 3.14. yes. Hello, यस सर. समझ में आया क्या? इंट फ्लोट. यस सर. हाँ, अभी नेक्स्ट जो है वो कैर है ना, कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा है. समटाइम्स वी आर यूजिंग कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा आल्सो, एंड टू मेंशन दैट टाइप ऑफ डेटा वी आर यूजिंग कैर. कैर हम यूज करेंगे, जैसे इंट है, फ्लोट है, वैसे ही कैर है जो कीवर्ड है. एक्चुअली दिस इज द फोर्थ कीवर्ड है. पहले वॉइड सीखा था, इंट, फ्लोट, ये चौथा कीवर्ड है जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, कैर है. सो मीनिंग ऑफ कैर इज व्हाट? कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा है ना, सिंगल कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा. इफ यू वांटेड टू स्टोर इन द वेरिएबल सो यू कैन यूज है ना कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कुछ गेम खेल रहे हो है ना मोबाइल पे या लैपटॉप पे, एंड आफ्टर आफ्टर प्लेइंग गेम इट मीन्स इफ सपोज है ना गेम इज ओवर है, गेम खत्म हुआ है ना, गेम इज ओवर, तो उसके बाद एक मैसेज दिखाया जाता है आपको स्क्रीन के ऊपर. वो क्या रहता है? हेलो, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, यस सर. डू यू वांट टू कंटिन्यू है ना सेम गेम अगेन. तो वहां पे आपको कीबोर्ड थ्रू या कीपैड से, नोट आपका क्या रहता है देखो ना, कीपैड रहेगा ना मोबाइल के लिए, कीबोर्ड जो रहेगा वो लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए रहेगा. वहां पे आप अगर स्मॉल वाई एंटर करोगे है ना, ऐसा कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको इनपुट लिया जाता है ना, that application or that game will ask to the customer, do you want to play it again? अगर yes, if yes तो y दबाओ, अगर नहीं है तो no n दबाओ. हेलो, सिंगल कैरेक्टर है, वेयर सिंगल कैरेक्टर विल बी इनपुट थ्रू कीबोर्ड. और ये सिंगल कैरेक्टर जो रहेगा वो नंबर में नहीं रहेगा, वो कैरेक्टर टाइप ऑफ रहेगा, कैरेक्टर टाइप का रहेगा. कैरेक्टर टाइप मीन्स व्हाट? either you can enter single character, okay, alphabet, digit और एनी स्पेशल सिंबल. जो डिजिट रहेगा वो 0 to 9 ही डिजिट रहेगा. डबल डिजिट जब आएगा है ना, फॉर एग्जांपल 11, तो यहाँ पे कैसा रहेगा कि ये जो कैरेक्टर नहीं रहेगा, बिकॉज 2 डिजिट्स यू विल बी यूजिंग. जब आप सिंगल डिजिट या सिंगल कैरेक्टर यूज करते हो तभी हम उसको कैरेक्टर कहेंगे. अगर 11 आता है तो वो 11 जो है वो कैरेक्टर नहीं होगा. हेलो, ओके. कैरेक्टर का मतलब क्या है? आइदर कैरेक्टर सेट हमने सीखा है ऑलरेडी, ठीक है. कैरेक्टर सेट से कैरेक्टर आता है, लक्षात घ्या. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैरेक्टर बोले तो क्या है? एक तो कैपिटल लेटर्स रहेगा, वो सिंगल रहेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स आए. हेलो, यस. यस. यस सर. सिंगल कैरेक्टर मीन्स व्हाट? आइदर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 और एनी स्पेशल सिंबल, जिसको हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं. कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स वी आर कॉलिंग देम एज कैरेक्टर सेट. सो इसमें से है ना, कैरेक्टर सेट में से कोई भी एक, कुछ भी एक है आया तो उसको हम कैरेक्टर बोलेंगे. एंड सच काइंड ऑफ डेटा इफ यू आर asking from customer side, so we are considering it as character type of data. Hello, okay. हेलो, हेलो. यस सर. अभी हमारे पास 9 minutes है. We have 9 minutes. We will write small program where we will try to understand character type of data. I am clearing the screen. We will go to Turbo C. दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? हेलो, यस. 5.c इसको हम सेव एज करेंगे, सेव एज, तो टाइपिंग का हमारा एफर्ट्स बचेगा. 5.c ये रिमूव किया, इसको भी डिलीट करेंगे.
इसको भी डिलीट करेंगे। क्या सीख रहे हैं हम? हेलो, यस। कैरेक्टर Yeah. टाइप To understand character type of data, सर डिक्लेयर कैसा किया जाता है ना, कैर। देखो व्हाइट कलर आया, व्हाइट कलर आया मीन्स ये कीवर्ड है ना, वाइड को भी व्हाइट कलर है, इन को भी व्हाइट कलर है, फ्लोट को भी व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर आता है मतलब ये व्हाइट कलर मतलब क्या है, कीवर्ड है। यस, हेलो। यस सर। तो क्या टाइप ऑफ डेटा आई एम यूजिंग एंड व्हेन आई विल मेंशन हियर ए एन, तो ये ए जो मेरा वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए में हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, नंबर नहीं। हेलो, नंबर स्टोर नहीं कर सकते, किया तो डिजिट स्टोर कर सकते हैं 0 to 9, जो एक ही कैरेक्टर रहता है। हेलो, यस सर। विचार करा है ना, विचार करा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो है, ए इज इक्वल टू कैरेक्टर कांस्टेंट टू टू डिनोट है ना, कैरेक्टर कांस्टेंट वी आर यूजिंग, कैरेक्टर कांस्टेंट वी आर यूजिंग सिंगल कोट्स। तो सिंगल कोट में अगर मैंने कौन है देखो अभी है, हेलो, कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है पता नहीं। फडकी मग ते तसले कौन आएगा, कळतंय का? हेलो, दोरी राहते वारे कपडे घेऊन वरची मग खेळायला पांढरा म्यूट करा। वैष्णवी लोखंडे रिमूव करतो मी, ठीक है चलो। यस आई रिमूव्ड हर, आई डोंट नो, है ना, आई गॉट इट, पता नहीं अभी वही है क्या पता नहीं। लोखंडे वैष्णवी को रिमूव किया है, अगर फिर से आवाज आता है तो अनफॉर्चुनेटली आई मेड मिस्टेक, वो कहूंगा मैं। अगर आवाज नहीं आता है तो मतलब वैष्णवी लोखंडे से आवाज आ रहा था, पता नहीं अभी, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, यस सर। here single character and character constant, to denote character constant we can use single quote। एकेरी अवतरण चिन्हामध्ये है, अगर मैंने p लिखा तो वो p जो है ना, p जो अल्फाबेट है, स्मॉल केस लेटर है, तो वो a में स्टोर होगा। लेट अस ट्राई टू चेक इट। p a का वैल्यू क्या है, /n a इज इक्वल टू, अभी %c लिखना पड़ेगा। वाई %c? %c is the format specifier for character type of data। %c जो है यहाँ पे वो कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू वी आर यूजिंग, देयरफॉर %c जो है वो हेल्प करेगा हमको कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। अगर हम %d यूज करते हैं तो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज वी कैन डिस्प्ले ऑन द आउटपुट स्क्रीन। If we are using %f as format specifier, so %f format specifier will help us to display fractional values on the output screen. Similarly, %c will help us to display character on the output screen. Okay? Hello. Yes? सर। हाँ, तो यहाँ पे a लिखता हूँ तो आउटपुट स्क्रीन पे हमको p दिखाई देगा, a का वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे हमको p दिखाई देगा। हेलो, तो क्या हुआ, p जो है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है, दैट वी ट्राई टू स्टोर इन a में स्टोर किया। तो ऐसा कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा इफ यू वांटेड टू स्टोर इन द कैरेक्टर इन द वेरिएबल, इन दैट केस वी विल हैव टू डिक्लेयर आवर वेरिएबल विथ char data type। हेलो, ओके ओके सर। हाँ, अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा तो ये 1 जो है ना, ए का वैल्यू 1 दिखाएगा, लेकिन ये 1 जो है वो कैरेक्टर है एक्चुअली, ये इंटीजर नहीं है। हेलो हेलो, ए का वैल्यू जो 1 है वो एक्चुअली इंटीजर नहीं है, वो कैरेक्टर है। इसका बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स
यू आर यूजिंग योर पासवर्ड्स इन दिस वे, ऐसा कुछ तो रहता है ना, सॉरी Rahul@123, यस, ऐसा कुछ तो पासवर्ड, एक एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे @ सिंबल है, ये 123 जो है ना, 123, ये 123 मतलब नंबर नहीं है, एक्चुअली एक कैरेक्टर है। हेलो, यस, समझ समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। हेलो हेलो, 123 जो है ना, पासवर्ड के अंदर जो 123 ऐसा कुछ नंबर या डिजिट्स रहते हैं, वो एक्चुअली कैरेक्टर रहते हैं, उसका कुछ मतलब ऐसा इंटीजर काइंड ऑफ मीनिंग नहीं है वहां पे। हैव यू अंडरस्टूड कैरेक्टर? येस सर. किती राहिलं? लास्ट 2 minutes आहे. Here, you can use है स्पेशल सिंबल्स आल्सो। हैश यूज किया तो हैश जो है वो स्टोर हो गया ए में, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। लेट अस ट्राई टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ ए ऑन द आउटपुट स्क्रीन। सो ए जो वेरिएबल है उसमें हमने हैश जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो स्टोर किया, और उसका वैल्यू वी आर ट्राइंग टू डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। यस, येस सर. तो अभी कीबोर्ड थ्रू कैसे लेने का है, यहाँ पे जो है वो इनिशियलाइज किया गया है। यहाँ पे कीबोर्ड थ्रू भी हम ए का वैल्यू ले सकते हैं, तो उसका बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और ये थोड़ा सा रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट एफ appropriate message, let us display appropriate message on the output screen, please enter single character। how we can enter single character through keyboard? scanf आता है कीबोर्ड थ्रू एंटर करने के लिए, यहाँ पे %c आएगा। हेलो, why %c? %c is the format specifier for character type of data, hello, yes, comma %c, सॉरी %a, यस। एक ए नाम का वेरिएबल लिया है जो कैरेक्टर टाइप का है, उसकी वजह से स्कैनफ में ऐसा लिखा है हमने %c, %a। मतलब we are asking to user to enter single character through keyboard, और जो भी कैरेक्टर कीबोर्ड थ्रू एंटर होगा वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा वो कैरेक्टर। हेलो, और immediately because of this printf function it will be displayed on the output screen। let us execute। येस सर. प्लीज एंटर सिंगल कैरेक्टर। अभी कौन सा भी कैरेक्टर हम एंटर कर सकते हैं। सपोज आई एम एंटरिंग स्टार, सो स्टार जो है वो ए नाम का जो कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा, और वो वैल्यू दिखाएगा इमीडिएट, ए का वैल्यू स्टार। हेलो, Yes, sir. सिमिलरली इफ यू विल यूज एनी कैपिटल लेटर से कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू जो है वो कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है, वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, उसका वैल्यू वी आर ट्राइंग टू डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। यस, ए इज इक्वल टू क्यू। हेलो, यस। Yes, sir. सपोज somebody will try to enter collection और group of characters, फॉर एग्जांपल नाम कोई तो लिख रहा है ना, स्वेरी हमारा कॉलेज का नाम है, तो उसमें खाली वो एक ही कैरेक्टर स्टोर करेगा जो पहला कैरेक्टर रहेगा स्वेरी में से, वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वही स्टोर होगा ए नाम के वेरिएबल में जो कैरेक्टर टाइप का है। हेलो, यस। येस सर. सो कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग, वो हम तीसरा चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अभी हम सिंगल कैरेक्टर, हाउ टू एंटर एंड हाउ वी कैन स्टोर इट एंड हाउ वी कैन डील द डेटा, वो सीख रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर का मीनिंग। हेलो, यस। येस सर. तो यहाँ पे हम आज रुक रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड लेट अस स्टॉप हियर।